welcome everyone. I am Disha Agrawal and I am a student at Maulana Azad Medical College, New Delhi. A little bit about me. I secured All India rank 499 in NEET, All India rank 59 in KVPY, 98.4% in class 12 boards and 99.55 percentile in JEE mains. तो यहाँ पर वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ चैट, ठीक है. मैं लेक्चर बिल्कुल नहीं देना चाहती. यू कैन आस्क मी योर डाउट्स एंड आई विल डू माई बेस्ट टू सॉल्व देम फॉर यू. So, what are we going to discuss? So, I will talk a little bit about how I chose NEET, then how I planned my preparation, and something that is very important. जैसे कोविड की इतनी प्रॉब्लम है, सो हाउ डू यू स्टडी थ्रू लॉकडाउन्स, कि आप अपना टाइम एफिशिएंटली कैसे यूज़ करें, बुक्स, मॉक टेस्ट्स एंड योर क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स. दिस इज ऑल फॉर यू. सो here is an overview of my journey. मैं आपको फटाफट बता देती हूँ. So let's talk I'll talk about it for a little while and then I'll take your questions. So till class 9, I had absolutely zero competitive examination knowledge. I had just appeared for one small exam and उसमें I remember मेरा cut off 1 mark से रह गया था. तो उसके बाद class 10 में we decided that I'll go for distance learning. So we went to a coaching center and we got the distance learning packages. I read them, but इतनी seriousness नहीं थी. तो NTSC में when I had to appear, marks improve हुए थे काफ़ी, but I still didn't make the cutoff. तो पहले interestingly हमने सोचा था कि I will not take any coaching in class 10 for NEET preparation. तो but finally we saw कि everybody takes up coaching at some point or the other, so we decided कि I will go for coaching. Then so from class 10 to class 11 it was a very sudden transition. Like class 10 में मैं एक भी coaching class में नहीं बैठी थी and class 11 में सीधा 4 hours daily. It was a lot. So if I had to say something, my class 11 was very clueless. And since a lot of people here are currently in class 11, I would say that you should not make the mistakes I made. So I'll tell you what all I did. So class 11 में I used to attend school very often. I used to take part in all competitions, functions. तो उसमें काफ़ी time चला जाता था. Then coaching में भी I used to attend all my classes, but I didn't solve a lot of mock tests. Then I did not clear my doubts. Then even जो मैंने 2-3 mock tests दिए उसमें my marks were not very good. Like I attempted, I don't know, maybe 10-11 mock tests, that's all. You should not do that. फिर class 11 में मेरा इतना backlog था because I never really took it very seriously. So I had chapters and chapters जिसका मैंने MCQ touch भी नहीं किया था. Like if you asked me something, I would probably be able to tell you the answer. But जो competitive exam के लिए focus चाहिए होता है वो बिल्कुल नहीं था. So if you asked me to solve a paper, I would do very poorly. At the end of class 11, I had a good percentage in class 11 in school, but my mock test performance was not good at all. And KVPY में in class 11 when I appeared for it, तब मेरा first round clear हो गया था, but interview के बाद I missed it by half a mark. तो मेरी वही story थी कि 1 mark या half mark से कुछ ना कुछ miss ही होता रहता था. So class 11 के end में I realized that I have a lot of work to do. Class 12 I had to take it very seriously. So that's why I wrote that in class 12 there were lots of realizations for me. So first of all, I bought a lot of MCQ practice books. तो class 11, class 12 मुझे simultaneously करना पड़ता था. तो I used to spend time doing class 11 and class 12 together every single day ताकि मेरा class 11 का backlog धीरे धीरे कम होता जाए. Class 12 में I was very regular with mock tests. चाहे आता है, नहीं आता है, syllabus complete है, complete नहीं है, I had to sit for the mock test. और ये आपको भी करना है. जो class 11 में है, class 12 में है, आपका syllabus पूरा complete हो या ना हो, mock test ज़रूर attempt करना है. We'll talk about कि mock test में कैसे करना है and क्या क्या approaches हो सकती हैं. I'll talk about all that. फिर class 12 में mock tests हो गया. I used to read a lot.
cover up class 11, and for my weak topics, I even started attending extra classes. So I took special permission and I started attending a lot of engineering lectures so that जो मेरे physical chemistry and physics के weak topics थे वो बिल्कुल perfect हो जाएं. And you have to keep solving MCQs over and over, बस करते रहो. और मैं क्या ही बोल. So class 12 के end में boards हो गए. KVPY I qualified the first round with with significantly better marks. एंड उसके बाद बोर्ड्स थे. बोर्ड्स भी मेरे हो गए आराम से. एंड आफ्टर बोर्ड्स जब वो बिल्कुल लॉकडाउन का पीरियड आने वाला था, वी डिडंट नो ऑफ कोर्स, तो तब आई रियलाइज़ कि इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड्स मेरे काफ़ी ख़राब मार्क्स आने लगे थे मॉक टेस्ट में फिर से. तो क्लास 11 में आई स्टार्टेड विद लाइक 547 आउट ऑफ 720. जो क्लास 12 में इम्प्रूव होते होते इट बिकेम 700 समटाइम्स, 690 समटाइम्स, एंड एकदम से boards के बाद my score fell to 600s, like early 600s or even 590. So I was very disturbed. At that point of time, I started revising again and again. I took a break from mock tests and उसके बाद lockdown हो गया. So lockdown में I was studying with a lot of focus. क्लास 11 क्लास 12 में ऐसा कोई फिक्स स्केड्यूल था नहीं. इट ऑल डिपेंडेड ऑन कि स्कूल कब ख़त्म हो रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. बट लॉकडाउन में आई हैड अ वेरी फिक्स स्केड्यूल एंड आई टेल यू अबाउट इट लेटर. सो अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट्स, अ लॉट ऑफ रिविजन. आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, एंड उससे मेरे मार्क्स फिर से दे केम बैक टू 680, 690. वट एवर टारगेट यू सेट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू ट्राई एंड अचीव दैट स्कोर. तो वो इम्प्रूव होता रहा. उसके बाद फिर नीट हुआ एंड आई टेल यू एग्जैक्टली 1 मंथ पहले मेरी क्या सिचुएशन थी, एक दिन पहले क्या थी. बिकॉज this year I see in the session we have people who are appearing for NEET this year as well. So I see a question, did you take maths in 11th and 12th? Yes, I did have maths, and if there is time I'll talk about it at the end. पहले NEET की बात कर लेते हैं. आप अपने NEET से related questions पूछ लो and then we'll talk about it. How did you balance school study? So I'll discuss the subjects in detail, but the thing is कि अगर आप NEET की preparation अच्छे से कर रहे हो, like you're reading your NCERT and you're solving your MCQs, you're doing everything, it is not that difficult. वो हो जाता है because you're familiar with the NCERT and school में आपको NCERT के ही words में लिखना होता है, तो इतना difficult नहीं होता. So just be consistent. Like it's a very generic thing to say, सभी कहते हैं, but it is actually the truth that you have to be consistent whether you're reading the NCERT, whether you're reading modules. Just be consistent and school भी manage हो जाएगा and coaching भी manage हो जाएगी. So let's see, planning your preparation. So when you're planning your preparation, when you're these 2 years, you will face a lot of problems. You can build a backlog. आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, इतनी बुक्स होती हैं, एंड उससे इतना सारा स्ट्रेस होता है. And you are the only one who has to solve all these problems. So I will try and give you some tips and hopefully discuss कि आप अपनी preparation कैसे plan कर सकते हैं that works best for you. So some general principles. तो जो schedule की बात होती है कि आप कब उठते थे, आप कितना पढ़ते थे, वो आपको खुद अपना सेट करना पड़ेगा. जो मेरे लिए काम करता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए काम करे. तो अभी मुझे बताओ कि आप सब कितना पढ़ ले. दिन में डू यू स्टडी इन द मॉर्निंग, डू यू स्टडी इन द आफ्टरनून, हाउ मेनी आवर्स, आर यू हैविंग प्रॉब्लम्स विद योर स्केड्यूल? ठीक है, आप अपना रिप्लाई करते रहना, आई विल मूव ऑन. सो NCERT, okay, 6 to 7 but inconsistent. 10 hours, that's very good. 1 hour a day, okay. ठीक है, okay. So
schedule आप अपना देख लो, you know, what time you want to start, what time you want to end. But I really feel that, you know, some days are good. आपका mood बहुत अच्छा होता है और आपको बहुत पढ़ने का मन कर रहा होता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं when, you know, you don't want to study a lot. मेरे साथ ऐसे बहुत ज़्यादा होता था. But you have to try, like you have to push yourself, you know, 2 years you have to really push yourself, कि आप at least, you know, you should study for 3 to 4, मतलब इतना तो आई थिंक आपका होना ही चाहिए. टेक ब्रेक्स, लाइक संडे कभी ऑफ ले लो, यू नो, वॉच अ मूवी एंड यू नो कम्प्लीटली चिल. मैंने बहुत ऐसे किया है. बट आई थिंक आपका बेयर मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए, 3 to 4, बिकॉज यू नो कम से कम आप कुछ तो रिवाइज कर पाओगे इतने में. उसके ऊपर you whatever you build up, you have to keep track of your progress. Anyway, so the NCERT is your Bible. I cannot say that I cannot emphasize that enough, because वो बिल्कुल NCERT के बीच में से सेंटेंस उठा के आपका क्वेश्चन बना देते हैं. तो आपको एक एक वर्ड से फेमिलियर होना है NCERT के. बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड सरप्राइजिंगली फिजिक्स. फिजिक्स में भी कुछ यू नो जैसे बायोलॉजी जैसा अप्रोच है, जो आई विल टेल यू अबाउट इट. Then when you're studying regularly, you have to clear your backlogs. जो MCQs इतने सारे होते हैं, you have to solve them properly. साथ साथ अपने लेक्चर की किया करो, because तब बहुत एक्टिव होते हो, and you can clear your doubts also, because जितना आप सॉल्व करोगे आपको उतने ही डाउट्स मिलेंगे पूछने के लिए. मैंने एक चीज़ की थी टू ट्रैक माई प्रोग्रेस. आई मेड अ टेबल फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. मैंने सबका सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए थे, एंड आई मेड कॉलम्स फॉर ऑल द बुक्स आई हैड टू सॉल्व. सो देयर वाज NCERT, देयर वर अ फ्यू MCQ बुक्स, मॉड्यूल्स थे, एंड जैसे जैसे मेरा कोई बुक होता था ना, आई यूज्ड टू क्रॉस इट आउट. तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती थी, यू नो, कि एक हो गया, एक हो गया. तो धीरे धीरे करके यू हैव टू, यू नो, ट्राई क्रॉसिंग आउट ऑल द बॉक्सेस, एंड नो कि ये हो गया है मेरा. Then you can make your own notes and formula sheets. Notes are very good for chemistry and biology. Formula sheets are excellent for physics and physical chemistry. I will talk about it more. So abhi tak koi doubts hai? How many hours did I study? Okay, that's a question. So 11th में इतना नहीं होता था, because I used to come back home very late from coaching. 12th में I used to study like school days पर भी, like at least 3 to 4 hours after coaching and school. Lockdown में I would say at least like 7-8 तो मेरा हो ही जाता था रोज़ का, because that was, you know, the crunch time and you really had to study a lot. Physics में NCERT ज़रूरी है कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है, and that takes me to my next slide. Oh sorry, there's one picture. तो आपको इतनी सारी बुक्स अक्यूमुलेट नहीं करनी है. यू हैव टू स्ट्रीमलाइन योर प्रेपरेशन. ऐसे नहीं कि इतनी सारी बुक्स खरीद लिया वो बस ऐसे पड़ी हुई हैं, बिकॉज मैं सच्ची बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इससे आधी बुक्स भी सॉल्व नहीं की होंगी मैंने. ये मेरी फाइनल बुक्स हैं जितनी अक्यूमुलेट हो गई थी, एंड मैंने शायद सिर्फ इनमें से आधी देखी थी एट द एंड ऑफ माई प्रेपरेशन. तो ऐसे नहीं करना है. यू हैव टू स्ट्रीमलाइन योर प्रेपरेशन. फिजिक्स, NCERT is not to be ignored. So I have this example. So the graph that you see over here, इस पे question आया था NEET 2020 में. They were asking about the shape of the graph, and देखो सीधा question बन गया NCERT के ग्राफ से. तो NCERT cannot be ignored. कुछ ऐसे topics होते हैं जैसे semiconductors, magnetism and matter, just a few, जिनकी थोड़ी biology जैसी approach हो सकती है. जैसे you might have to make notes. I made notes for these chapters because बहुत facts होते हैं. And even जो बाकी topics हैं ना, थोड़े जो conceptual ज़्यादा हैं, जब आप NCERT पढ़ो तब आपको जो कोई facts मिले, you can write them down separately, you know, because they can ask a question from the facts. तो you should write it down. जैसे ये graphs हैं, you can take a note of these graphs in your formula sheets and revise them properly, because I think ऐसे questions अब वो शायद common हो जाएंगे. सीधा ही ना ऐसे ग्राफ उठा के उन्होंने पूछ लिया. अच्छा मुझे ये बताओ कि फिजिक्स में किसी को डर लगता है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से कि उन्हें फिजिक्स से बहुत डर लगता है. मेरा फेवरेट था फिजिक्स, वेरी ऑनेस्टली. तो मे बी आई कैन हेल्प यू अ लिटिल बिट. HC Verma, okay. HC Verma, I would say it's probably a little too high level and it does not have a lot of MCQs. तो
द बुक्स आई सॉल्व्ड वर DC पांडे. पीपल, वो लोग तो जेई वर्जन भी बोलते हैं, बट मैंने नीट किया बिकॉज नीट में थोड़े बहुत जेई के क्वेश्चंस हैं. माई प्राइमरी सोर्स ऑफ थियोरी वॉज क्लास नोट्स, मॉड्यूल्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. देन अगर किसी को जेई अटेम्प्ट करना है या KVPY अटेम्प्ट करना है तो यू कैन ट्राई सॉल्विंग जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दे वर वेरी हेल्पफुल. आई यूज टू अटेंड इंजीनियरिंग के क्लासेस, तो मेरे लिए it was easier to solve PYQs because वो क्लास में हो जाते थे. But if somebody wants an extra edge, I think JEE PYQs are a good thing to solve. And you should keep physics. The key to understanding physics is MCQs solve करते रहो. Like आप theory पढ़ोगे तो उससे कुछ समझ में आएगा नहीं ज़्यादा. आप जितने MCQs solve करोगे, theory थोड़ी पढ़ ली, but after that you have to keep solving MCQs over and over again. Same, your choice, but I would prefer कि आप अलग अलग टॉपिक से अलग अलग तरह के MCQs सॉल्व करो. यार फिजिक्स से क्यों डर रहे हो? यू कैन ट्राई, जिसको डर लगता है बहुत ज़्यादा वो ट्राई करे कि फॉर्मूला बुकलेट्स बना लो अपने, जितने आपको कोचिंग का आपको मटेरियल मिलता होगा. NCERT होगी आपके पास, तो जो जो आपको फॉर्मूले दिखे एंड जो ग्राफ्स दिखे आप उसको एक फॉर्मूला बुक में कंपाइल कर लो और वो एंड में रिवीजन में बहुत हेल्प करता है. फिजिक्स की डेरिवेशन नहीं आती. तो सी डेरिवेशन, दिस इज़ अ गुड पॉइंट कि जिसको डेरिवेशन नहीं आती. तो डेरिवेशंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो स्कूल एग्जाम्स में पूछेंगे डेरिवेशन. एटलीस्ट जो NCERT की डेरिवेशन है आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि यहाँ चल क्या रहा है. रही बात नीट की, जो बहुत फंडामेंटल डेरिवेशंस होती हैं, जैसे आई थिंक रे ऑप्टिक्स में सिंपल डेरिवेशंस होती हैं. आई मीन इट्स गुड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग. कि अगर आप फॉर्मूला भूल गए, बाई चांस आप फॉर्मूला भूल गए, सो एटलीस्ट कि डिराइव कैसे हुआ था ताकि आप फिर से डिराइव कर पाओ एग्जाम में. मेरे साथ एक्चुअली नीट में हुआ था. आई फॉरगॉट अ फॉर्मूला, इट वॉज अ वेरी सिंपल वन, बट वो स्ट्रेस में भूल जाते हैं. बट बिकॉज आई रिमेंबर्ड कि कैसे डिराइव हुआ था, आई कुड डिराइव इट एंड सॉल्व द क्वेश्चन. तो यू शुड ट्राई, एटलीस्ट जो 11th में है, जो 12th में है, दे शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग डेरिवेशन. अगर किसी का अभी आने वाला है तो प्लीज़ डेरिवेशंस मत करो, आप फॉर्मूले देख लो, याद कर लो, प्रैक्टिस करो एंड अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह दे कर आओ. सो मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत फिजिक्स जैसा अप्रोच है. मॉड्यूल्स, क्लास नोट्स, लॉट्स ऑफ MCQs. तो इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री है जिसकी मैंने मॉड्यूल पूरी सॉल्व की थी. दैट वाज 500 क्वेश्चंस पर चैप्टर. एंड वंस आई सॉल्व्ड दोज 500 क्वेश्चंस, मुझे कभी ऐसे रिवाइज नहीं करना पड़ा. मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, बिकॉज वो इतने सारे करके आई हैड सीन ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो फॉर्मूला शीट बनाओ, MCQs सॉल्व करो, and once you have solved a lot of MCQs, then you don't even need to practice separately. आप बस अपनी फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट्स अटेम्प्ट करोगे एंड आपकी रिविजन होती रहेगी. अब इनऑर्गेनिक के लिए आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि NCERT इज द ओनली बुक यू नीड. तो आई विल शो यू समथिंग. सो दिस वाज अ क्वेश्चन इन नीट 2020. तो अपेरेंटली लोगों को ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा था बिकॉज ये डायरेक्टली नहीं दिया था बुक में. एंड इफ़ यू सी S ब्लॉक, क्लास 11 S ब्लॉक, उसमें इस पैराग्राफ में इनडायरेक्टली आंसर था. तो ऐसे क्वेश्चन आए थे. एंड अगर आप NCERT के बिल्कुल एक एक सेंटेंस से फेमिलियर हो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. इनऑर्गेनिक के लिए मैंने MCQ ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे. जो मेरे मॉक टेस्ट होते थे, पार्ट टेस्ट्स, कंप्लीट टेस्ट्स, मैंने उन्हीं के थ्रू अपनी रिविजन की थी. देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फॉर ऑल 3 आपको NCERT पढ़नी है, फैक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, फैक्ट्स याद करने हैं, एंड जो क्वेश्चंस होते हैं बैक एक्सरसाइजेस वो भी सॉल्व करनी है. ऑर्गेनिक के लिए आई रेफर टू माई क्लास नोट्स फॉर थ्योरी. आई हैड वेरी गुड क्लास नोट्स एंड आई सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ MCQs. जितना आपको कोचिंग में मटेरियल मिल रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट जो थोड़े बेसिक लेवल के हों, जो नीट टाइप हो क्वेश्चंस, वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड मॉक टेस्ट्स करते रहना. फॉर एवरी सब्जेक्ट यही स्ट्रैटेजी होती है
कि आपको MCQ सॉल्व करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है एंड रिवाइज करते रहना है. MCQ के थ्रू रिविजन बहुत अच्छी होती है एंड NCERT पे बहुत अच्छी तरह फोकस करना है. Organic में if someone wants to have an extra edge, they can refer to MS Chauhan. They have nice MCQs. मैंने JEE वर्जन सॉल्व किया था, वो काफ़ी इरेलीवेंट था नीट के लिए एटलीस्ट, लेकिन नीट वाला आई वॉज फॉन्ड ऑफ बिकॉज द क्वेश्चंस वर नाइस. फिजिकल के लिए आई थिंक देयर इज़ अ बुक, नरेंद्र अवस्थी. You can solve it if you want, but first solve the back questions of NCERT. सब्जेक्टिव होते हैं, आई नो MCQs नहीं होते, लेकिन सॉल्व ज़रूर करना. एंड मे बी यू कैन ट्राई सॉल्विंग योर मॉड्यूल्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, लाइक सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. फिर नरेंद्र अवस्थी भी होती है शायद फिजिकल केमिस्ट्री की, विद गुड क्वेश्चंस, तो अगर आपके पास टाइम हो तब करना. इनऑर्गेनिक के लिए प्लीज़ बुक्स होती हैं JD ली एंड एक दो और थी, मैंने ख़रीद के रखी थी, मैंने कभी भी नहीं खोली. कोई फ़ायदा नहीं है. आप अपनी NCERT के नोट्स बनाओ, NCERT पढ़ो एंड मॉक टेस्ट में अगर आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा मिले तो अपने नोट्स में ऐड कर देना, बहुत हेल्प होगी. देन बायोलॉजी. अब मुझे ये बताओ कि बायोलॉजी तुम्हारा फेवरेट है? दैट्स गुड, बिकॉज बायोलॉजी वॉज नॉट माई फेवरेट. मुझे फिज़िक्स बहुत पसंद थी, मुझे बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिकॉज इतना याद करना होता था एंड जो क्वेश्चंस आते थे वो सीधा NCERT के लाइन से उठा के आते थे, तो मैं सोचती थी कि ये बुक रट के मैं ये क्या हो रहा है. एनीवे, अगर आपको करना है बायोलॉजी अच्छी तरह, NCERT इज़ योर वन एंड ओनली. ठीक है, बिल्कुल NCERT आपके टिप्स पर होनी चाहिए. अगर मैं आपको सोते हुए भी पूछ लूँ कि इस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से कौन से प्लांट में क्या होता है, यू शुड बी एबल टू टेल मी. दैट्स हाउ फेमिलियर यू शुड बी विद NCERT. नीट 2020 में सारे क्वेश्चन NCERT से थे. एंड एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि नीट बायोलॉजी क्रैक करने दे नीड टू हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, कि बिल्कुल जैसे ट्रूमैन होती है, फिर कैम्पबेल, फिर A लेवल्स की बुक्स होते हैं, बहुत डिटेल में होते हैं, वो कुछ वैसे काम में नहीं आते ज़्यादा. ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, if you want extra information, modules of any institute, आपके Amazon के आपको मिलते होंगे, they're very good. So you can always refer to modules if you want extra information, but primary is NCERT. ठीक है, ये बिल्कुल आप ना बड़ा बड़ा करके लिख लो कि मुझे सिर्फ NCERT पढ़नी है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए. उसके जब NCERT हो जाए तब मुझे आगे मुश्किल चीज़ें करनी है. NCERT इज़ योर बेसिक लेवल. ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी. सो बिफोर द एग्ज़ाम ट्रूमैन अच्छी है. मैंने बायोलॉजी NCERT से ज़्यादा और मॉड्यूल से ज़्यादा नहीं पढ़ी. ट्रूमैन आई डेंट हैव द विल पावर टू ओपन एंड रीड ऑल ऑफ दैट, बट जितना मैंने सुना है दे से कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. तो आई डोंट नो, आई थिंक आप पहले NCERT करो एंड इफ़ यू फील अगर आपके मॉक टेस्ट्स में NCERT करने के बाद या मॉड्यूल थोड़ी बहुत करने के बाद मार्क्स नहीं आ रहे हैं, देन यू कैन लुक फॉर अदर थिंग्स, बट पहले NCERT ही करनी है. सो दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू शो यू. ये जो पिक्चर्स मैंने दो डाली हैं, सो द पिक्चर ऑन द लेफ्ट इज़ अ डायग्राम फ्रॉम द ओल्ड NCERT एंड द पिक्चर ऑन द राइट इज़ फ्रॉम द न्यू NCERT. अब आपको न्यू NCERT के डायग्राम्स ही देखने हैं, बिकॉज जो ये न्यू डायग्राम है, मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले देखा था इन अ PDF एंड इसी डायग्राम से क्वेश्चन आ गया कि ये आप हमें इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर बताओ. अब अगर मैंने न्यू डायग्राम ना देखा होता, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू सॉल्व एंड आई वुड हैव लॉस्ट मार्क्स और आई वुड हैव लेफ्ट द क्वेश्चन, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है डायग्राम्स में. सो फॉर दोज हु आर अपियरिंग फॉर नीट दिस ईयर, आप प्लीज़ न्यू NCERT के डायग्राम्स देख कर जाना. एंड जो अभी 11th-12th में है, आप प्लीज़ न्यू NCERT के डायग्राम से ही रेफर करके पढ़ना. ठीक है, कुछ चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी के, आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं एंड उनकी डेफिशिएंसीज,
उसके आप नोट्स बना सकते हो, वेरी हेल्पफुल। एक एक एलिमेंट का क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फीचर्स, यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दैट, कीप रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, वो याद हो जाएगा। इट्स नॉट दैट इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर एक टॉपिक है जो मुझे बहुत गंदा लगता है, वो कॉकरोच। मैं 11th में हमें पढ़ाया था, मुझे 12th के एंड तक, या फिर आई वुड से मुझे लॉकडाउन के जुलाई तक वो टॉपिक नहीं आता था। फिर मैंने सोचा कि कॉकरोच से तो क्वेश्चन आता है, तो आई ओपन माई एनसीईआरटी एंड मैंने सारे नोट्स बनाए कॉकरोच के, एंड मुझे समवट याद हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो आपको बहुत फैक्चुअल लग रहे हैं टॉपिक्स, तो आप उनके नोट्स बना लो। सो दैट इज़ फॉर बायोलॉजी। Any questions? I will see your questions now for a few minutes. Is cell chapter very important? आपका मतलब सेल का पूरा यूनिट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप अच्छी तरह करो। स्कोरिंग होता है एंड काफ़ी रिपीटेड इन्फॉर्मेशन होती है, एंड जब आप MBBS में पहुंच जाओगे, आप ऐसे सोच लो कि ये सब आपको कभी ना कभी पढ़ना ही है। तो सेल तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, आप अच्छी तरह पढ़ के रखो भी NCERT में जो भी है, फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, रीड इट प्रॉपरली। I don't know why, but I feel like NEET questions are easier than CBSE board questions. This year, 2020, I completely agree with you. मेरे फिजिक्स के जो CBSE questions थे, they were more difficult than my NEET के फिजिक्स questions. तो I agree with you. बायोमोलिक्यूल्स हार्ड लग रहा है। बायोमोलिक्यूल्स के लिए NCERT नोट्स बना लो, वेरी हेल्पफुल। एंड जो मॉलिक्यूल्स के डायग्राम्स हैं उनको ऑब्जर्व करो। जैसे कभी कभी वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एडेनिन में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। सो यू कैन इवन ट्राई कि बुक में साइड में लिख लो, मॉलिक्यूल के साइड में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायग्राम। So in biology, a lot of the times you have to stare at the diagram and extract more information. वो evidently लिखा नहीं होगा कि ऐसे होता है, but वो कहीं ना कहीं किसी लेबल में होगा, या फिर कहीं पे जैसे शेप वो चेंज कर देंगे किसी चीज़ के, and then they'll ask कि इस चीज़ की क्या शेप है। फिर एक आई रिमेंबर प्लांट फिजियोलॉजी में एक डायग्राम है जिसमें साइटोक्रोम B6F करके है। It's not mentioned anywhere in the content, but if they ask you to label the diagram, you should know कि वहाँ पे ये वाला साइटोक्रोम है। तो I'll tell you how we should revise physics in the end. Least questions should to be done for each chapter in physics, chemistry, biology. That is a good question. So physics के लिए I would say you should solve at least 100 questions per chapter, not less than that, because आप जितना सॉल्व करोगे आपके उतना मेमोरी में आएगा, एंड आपको रिविजन में उतनी आसानी होगी, बिकॉज यू कैन प्लेस कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, उसमें ये फॉर्मूला यूज़ हुआ था, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। केमिस्ट्री के लिए भी सेम। बायोलॉजी के लिए आई थिंक इट इज़ सब्जेक्टिव। मैंने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे बायोलॉजी के लिए, मैंने रीड ज़्यादा किया था थियोरी, बिकॉज आई फेल्ट कि मैं रीड करूँगी तो मैं जल्दी जल्दी आई विल बी एबल टू कवर अ लॉट मोर। दैट इज़ सब्जेक्ट टू यू। बायोलॉजी को रिवाइज कैसे करें, आई विल जस्ट गेट टू दैट इन अ मिनट। सो अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट्स, I really like this line that exams do not test your intelligence, they test your preparation. तो एग्जाम्स को एस करना, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है। अ वेरी an average sincere person can do significantly better than a very intelligent person बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो it depends on your preparation. तो मॉक टेस्ट की आप मुझे ये बताओ कि आप कितने मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो ऑन एवरेज इन अ वीक? Three is very good, two is excellent, seven, that is amazing. या zero मत करो, zeros, or you should solve more mock tests. I think 2 to 3 is a good number if you're in class 11. Class 12 maybe, 2 to 3 is very good. Before the exam, you should solve one every day. Anyway,
तो a lot of people say कि हम फिजिक्स से स्टार्ट करते थे, केमिस्ट्री से स्टार्ट करते थे. आई विल टेल यू मैं कैसे करती थी. सो आई ऑलवेज स्टार्टेड विद बायोलॉजी. Then I used to move on to chemistry and then I moved on to physics. तो जब आप अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, यू हैव टू कीप अ ट्रैक कि आप कितने टाइम में क्या सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज ये अल्टीमेटली प्रैक्टिस टेस्ट है. एंड आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आप उसी तरह अपने फाइनल एग्जाम में परफॉर्म करोगे. तो बायोलॉजी के लिए आई यूज टू स्पेंड मैक्सिमम 20 मिनट्स या 30 मिनट्स. इतने में मुझे बायोलॉजी ख़त्म करनी है. ये मेरा टारगेट होता था. नेसेसरी नहीं है कि हर बार इसी फ्रेम में ख़त्म हो जाए, बट बायोलॉजी इतने मुझे जल्दी जल्दी करना है बिकॉज बायोलॉजी स्कोरिंग है. आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो. उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं होते जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़े. देन केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक थोड़ा बायोलॉजी जैसा ही हिसाब होता है, तो उसको भी जल्दी करना है. फिजिक्स में आपको अपना यू हैव टू टेक योर टाइम, मतलब आराम से करो. सिली एरर्स नहीं करने, बिकॉज अगर आपने कैलकुलेशन में कभी 2 को 0 बना दिया, मैंने ये गलती बहुत बार की है कि मैंने 2 को 0 बना दिया, मैंने 6 को 8 बना दिया, पूरी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है. सो फिजिकल केमिस्ट्री एंड विद फिजिक्स यू हैव टू टेक योर टाइम. एंड मेरा गोल होता था, आई यूज टू हैव अ टारगेट ऑलवेज, कि जो मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रही हूँ वो फुल लेंथ हो या पार्ट टेस्ट हो, कि मुझे 2 आवर्स में एक बार पूरा पेपर सॉल्व करना है. एंड 1 आवर आई एम गोइंग टू रिवाइज इट. यू कैन हैव योर ओन वे ऑफ सॉल्विंग अ मॉक टेस्ट. तो वो देख लो, वट एवर वर्क्स फॉर यू. अगर आप 11th में हो, यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स कि आपके लिए क्या काम कर रहा है. एंड इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर नीट दिस ईयर, यू शुड हैव अ प्लान ऑलरेडी कि मुझे इतना टाइम में ये सॉल्व करना है, इस सीक्वेंस में करना है. एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग अ मॉक टेस्ट, इफ़ यू डोंट नो समथिंग, मूव ऑन. टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी. नहीं आता, छोड़ो, मूव ऑन. फिर OMR मेरा प्रेफरेंस था कि जब मैंने एक बार पूरा पेपर सॉल्व कर लिया 2 आवर्स लगा के, तो I would revise every question and I would mark my OMR simultaneously. So I always marked my OMR at the end. But आपको देखना है कि आप कैसे comfortable हो and how you would like to mark your OMR. Because it's completely dependent on you and you should not make mistakes while marking your OMR. अगर उसमें गलती हो गई then it's very upsetting because आपने पूरा पेपर सही सॉल्व किया, आपकी OMR में गलती हो गई. तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एक बार आपका मॉक टेस्ट हो जाए, you have to read कि आपने कहाँ पर मिस्टेक्स किए हैं. तो अगर मैंने देखा कि मैंने फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में बहुत मिस्टेक्स किए हैं, इट इज़ माई ड्यूटी टू रीड द एंटायर चैप्टर अगेन. तो मुझे सारे अच्छी तरह देखना है मैंने कहाँ गलती की, क्यों गलती की, एंड मैं उसे कैसे ठीक कर सकती हूँ. सो इफ़ यू फॉलो ऑल दिस एंड यू आर वेरी रेगुलर विद योर मॉक टेस्ट, द लास्ट डे आई अश्योर यू सॉल्विंग द मॉक टेस्ट विल बी लाइक मसल मेमोरी. आपको पता होगा मुझे यहाँ से करना है, मुझे ऐसे करना है, फिर मुझे केमिस्ट्री करनी है, फिर मुझे फिजिक्स करनी है, डन. OMR ऐसे मार्क करना है. बिल्कुल वहाँ पे बैठ के सोचना नहीं है कि अच्छा अब मैं ऐसे करूँ, अच्छा शैल आई लीव दिस, शैल आई मूव ऑन, व्हाट शैल आई डू. दिस शुड नॉट हैपन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. एंड हाउ टू रिवाइज फॉर अ मॉक टेस्ट. तो जैसे मैंने आपको बताया, जो आप नोट्स बनाओगे, जो आप फॉर्मूला शीट्स बनाओगे, जो रेलिवेंट चैप्टर्स हैं वो फटाफट एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लो. बायोलॉजी में एक बार जल्दी जल्दी NCERT में जो पॉइंट्स आपने मार्क किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, आप डायग्राम्स देख लो. सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्विकली रिवाइज. यू कैन नॉट यूज़ वाइटनर इन OMR शीट्स. यू हैव टू प्रैक्टिस इन अ वे कि आपकी OMR मार्किंग में बिल्कुल गलती ना हो. ठीक है. सो वाइटनर शुड नॉट बी यूज्ड. इनऑर्गेनिक के लिए टिप्स. इनऑर्गेनिक के लिए, अच्छा, तो मैंने NCERT के सारे चैप्टर्स से नोट्स बनाए थे एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज ये कंसेप्चुअल है एंड इसमें जो थोड़े बहुत फैक्ट्स थे वो मैंने लिख लिए थे अलग से. एंड यू हैव टू रिवाइज. आई रिवाइज्ड दैट नोटबुक एटलीस्ट 7-8 टाइम्स जल्दी जल्दी. मैंने इनफैक्ट आई डोंट एडवाइज दिस, मैंने एग्ज़ाम के दिन पूरी वो नोटबुक फिर से पढ़ी थी सुबह सुबह उठ के, बिकॉज मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था. तो द डे ऑफ द एग्ज़ाम आई एक्चुअली ओपन दैट नोटबुक एंड आई रेड एवरीथिंग ऑल ओवर अगैन.
एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो मैंने पढ़ा था स्पेसिफिकली मेटलर्जी में ना, एक पैराग्राफ था कुछ आयरन पे था, आई थिंक पिग आयरन, कास्ट आयरन, मैंने वो पढ़ा था, सीधा वही सेंटेंस से क्वेश्चन आ गया. सो इट सेव्ड मी अ लॉट ऑफ मार्क्स जो मैंने सुबह किया था. इट मे नॉट वर्क फॉर यू, आई डोंट एडवाइज इट कि आप सुबह सुबह अपने आप को स्ट्रेस करो ऐसे, बट इट वर्कड फॉर मी, सो इट्स योर चॉइस. देन एनी क्वेश्चन सो फार? I'll take a little while for few questions and then I will tell you जो 2021 वाले हैं वो अभी क्या कर सकते हैं. You can send in your questions. I will continue with this analysis and then I'll get back to your questions. So for NEET 2021 people, this is very important. So at this point, आपका पूरा syllabus complete होना चाहिए, ठीक है? You should be confident with most of the chapters. आपको हर रोज़ mock test solve करना है and आप mock test solve करोगे with a mask, with an OMR. AC बिल्कुल बंद रखना है, ठीक है? AC ऑन करके आराम से mock test solve नहीं करना, because एग्ज़ाम हॉल में हमें नहीं पता होता, आपका पंखा भी शायद ना चले. तो आपको अच्छी तरह मॉक टेस्ट हर रोज़ सॉल्व करना है मास्क के साथ विद एन OMR. फिर जो आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं आपको वो पोर्शंस रिवाइज करने हैं. अगर आपके मिस्टेक हो रहे हैं मतलब शायद आपको वो याद नहीं है, और अगर आप रिवाइज करोगे तो धीरे धीरे करके आपका पूरा फिर से रिवाइज हो जाएगा. तो जो ये पिक्चर है, दिस इज़ एक्चुअली अ पिक्चर ऑफ द नोट्स आई मेड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो इनऑर्गेनिक का पूछ रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे स्कोर करना है, तो आप देख सकते हो कि मैंने एक एरो बनाया हुआ है कि मैंने सारे ऑर्डर्स जो थे, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो जितने ऑर्डर्स थे मैंने सबकी लिस्ट बना ली एंड आई वुड कीप रिवाइजिंग इट ओवर एंड ओवर कि रेडियस का क्या ऑर्डर है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर है. तो मैंने ऐसे करके पूरे चैप्टर के सारे NCERT के वर्ड्स यूज़ करके मैंने ये नोट्स बनाए थे. सो दिस वॉज वेरी हेल्पफुल. Inorganic के लिए I really struggled, but I feel this is the best way to do it, that you make your own notes and you read them again and again before every test that you appear for. Read in chunks. अब biology में जो पूछ रहे थे कि biology कैसे revise करें, तो जैसे the entire book is divided into units. तो human physiology का unit है, cell biology का unit है. So any day I would pick up a unit and I would just revise the entire unit in one go कि सारे chapters एक बार जल्दी जल्दी देख लिया. तो मैं ऐसे रिवाइज करती थी बायोलॉजी. तो कभी कभी कोई सेंटेंस दिख जाता था जो मैंने पहले स्किप कर दिया था, कोई डायग्राम में कोई पॉइंट दिख जाता था. सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. लास्ट पॉइंट, आई एम वेरी गिल्टी ऑफ इट. पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? आपने इतनी मेहनत की है एंड बिल्कुल पैनिक करके यू कैन नॉट रूइन योर प्रेपरेशन. So just one more month, do not panic and give it your best. On the day of the exam, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स 2 दिन पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में तैयार करके रखने हैं. अब बिल्कुल सेफली रख देना, ठीक है? डू नॉट फॉरगेट योर एडमिट कार्ड, एनीथिंग. अगर आपको एंट्री ही नहीं मिली तो फिर आपकी इतनी एफर्ट वेस्ट हो जाएगी. अच्छी तरह खाकर जाना है. मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी एग्ज़ाम के दिन, बट मुझे मम्मा ने अच्छी तरह खिलाकर भेजा एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ, बिकॉज एग्ज़ाम के बीच में आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी हंग्री, तो मेरे स्टमक एक होने लगा था. लेकिन इतना भी बुरा नहीं था बिकॉज मुझे मम्मा ने अच्छी तरह खिला के भेजा था. तो आप प्लीज़ अच्छी तरह खाकर जाना. इफ़ यू वॉन्ट टू रीड योर नोट्स अगैन क्विकली, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. आपको बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स पहनने हैं, नो ज्वेलरी, नो वॉचेस, नथिंग, वेरी सिंपल, एंड डू नॉट पैनिक, ठीक है? बिल्कुल अपनी मसल मेमोरी जो आपने इतने अच्छी तरह मॉक टेस्ट किए हैं, आपको बिल्कुल उसे यूज़ करके कामली अपना पेपर सॉल्व करना है, अच्छी तरह रिवाइज करना है कि आपने कोई स्टूपिड मिस्टेक नहीं की है, और वापस आ जाना है. पोस्ट एग्जाम, तो दिस इज़ अ मीम. वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेंट दिस मीम टू मी द डे बिफोर द रिजल्ट्स. उसमें था, देख भाई रिजल्ट पूछा तो रिश्ता ख़त्म. मैंने अपने स्टेटस पे लगा दिया था.
कि कोई मुझसे मेरा रिजल्ट ना पूछे, बिकॉज मुझे पता नहीं था कैसा आने वाला है. एनीवे, तो यू हैव टू वेट फॉर क्रेडिबल आंसर कीज. ठीक है, ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे चले गए कि कोई भी आके कोई भी आंसर की बता रहे हैं, हम उसी से अपना टैली कर रहे हैं. ऐसे नहीं करना. यूट्यूब पे एक्सपेक्टेड रैंक वीडियोस बहुत आएंगी, मत देखो, स्ट्रेस ही पड़ता है. बिकॉज इस साल जो इन्फ्लेशन हुई आपको पता ही है. हु वुड हैव थॉट कि 683 मार्क्स पर रैंक 499 आएगी. तो नोबडी प्रिडिक्टेड इट. इनफैक्ट सम प्रिडिक्टर्स वुड टेल मी कि आपकी रैंक 10 आएगी या 100 आएगी. सो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. डोंट डू इट एंड टेक अ ब्रेक. ओके, जितना आपने टीवी शोज मिस किए हैं, म्यूज़िक नहीं सुना, एक्सरसाइज नहीं की, जिम नहीं गए, आप जाओ, आराम से करो. यू टेक अ ब्रेक while of course following COVID safety precautions. वो सब you can't ignore. Some tips from my end that I used. So this is a meme. How many people are guilty of doing this? ऐसे कौन करता है कि पहले वो पेजेस काउंट करता है, फिर देखता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर सॉल्व करना है. मैं सच्ची बताऊँ, मैंने ऐसे बहुत किया है. लाइक फॉर एवरी चैप्टर आई यूज्ड टू सिट एंड काउंट कि कितने पेजेस हैं, एंड देन आई वुड स्टार्ट कि शुड आई रीड इट और शुड आई नॉट रीड. Well, glad to see I'm not alone. Anyway, so this approach can be used in a way. So जब आप पेजेस देखो, छोटा चैप्टर है तो आप पहले ना छोटा चैप्टर पढ़ लो कि छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड यू विल फील बेटर कि यू नो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, एक एक करके फटाफट चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं, यू विल फील वेरी नाइस. सो व्हेन यू हैव टू रीड अ लॉन्ग चैप्टर लाइक जेनेटिक्स, यू आर एटलीस्ट कॉन्फिडेंट कि मैंने पहले छोटा चैप्टर पढ़ लिया. जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, शायद वो काफ़ी छोटा है, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट. Every day you should take out some time to relax. You know, I used to go for a walk with my mom. I used to watch TV. I used to listen to music. I used to talk to my friends sometimes. So if you don't relax, you know, the stress can be a lot. तो आपको बिल्कुल रिलैक्स करके पढ़ाई करनी है, फोकस के साथ. अच्छी तरह सोना है. बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि हम रात को आधा आधा घंटा सो रहे हैं और फिर पूरा दिन उठ के हम पढ़ रहे हैं. ऐसे नहीं करना. इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. आई यूज टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7-8 आवर्स. वो भी लॉकडाउन में. उसके पहले तो वीकेंड्स पर आई वुड ईजिली स्लीप फॉर 9 आवर्स आराम से. फोकस ऑन वीक टॉपिक्स. अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स आपको नहीं पढ़नी. ठीक है, जो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसे पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो मेरी बायोलॉजी वीक थी, सो आई हैड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन बायोलॉजी यूजिंग द वेज आई टोल्ड यू. नो, जल्दी जल्दी चैप्टर्स पढ़ो, रिवाइज करो, हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ. And one very interesting thing is you can try things practically. तो I had problem with biology. जैसे morphology and flowering plants है, very irritating chapter. उसके लिए मैंने actually चाइना रोज़ गार्डन से प्लक किया और उसे डाइसेक्ट कर दिया. So I could see कि उसके ओवरी में 5 कंपार्टमेंट्स हैं, पेंटामेरस, ऑल दैट थिंग्स. कभी टमाटर काट दिया, उसके देखा कि 3-3 उसकी प्लासेंटेशन कैसी है, नींबू काट दिया. तो यू कैन ट्राई दिस. थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अदरवाइज इट्स वेरी बोरिंग. फिर व्हाट वर योर मार्क्स इन मॉक टेस्ट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ? सो माई मार्क्स रेंज फ्रॉम अराउंड 670 to 700. इतना था. द लास्ट मॉक टेस्ट आई अटेम्प्टेड, आई स्कोर्ड 685. सो माई फाइनल रिजल्ट वॉज वेरी क्लोज टू माई मॉक टेस्ट मार्क्स. बट मॉक टेस्ट ज़्यादा मुश्किल होते थे. नीट 2020 तो काफ़ी आसान आ गया. This is a picture of my white coat and my stethoscope. So it was a very nice moment. I went and bought my white coat. Then we had a white coat ceremony, and then I got this stethoscope as a gift after NEET. In fact, मुझे NEET के बाद तो काफ़ी books मिली. And then I don't know if you can see, but behind me I have all these MBBS books also now. तो अब NCERTs तो चली गई, अब ये वाली बुक्स आ गई हैं. बट जो सेटिस्फैक्शन मिली थी कि 2 साल ख़त्म हो गए, अब सारी बुक्स अब चेंज हो जाएंगी मेरी. एंड आई गॉट अ वाइट कोट, आई गॉट अ स्टेथोस्कोप, सो दैट वाज वेरी नाइस. सो दैट वाज माय मोटिवेशन कि आई हैव टू गेट ओवर विद इट. एवरीबडी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव एंड मुझे कंप्लीट करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है. सो दैट वाज माय मोटिवेशन एंड आई थिंक आई गॉट थ्रू टू द अदर साइड. So it's a nice feeling, जब आपका हो जाएगा, you'll feel relieved that a long journey has come to an end.
like in terms of NEET preparation. MBBS is a very long process though. Any questions now? So iske aage, I don't have much to share. So I have time for your questions. Should I do extra things in biology? I don't think so. I don't think you need to. NCERT पढ़ो, NCERT के basis पे question solve करो. एक book होती है शायद, NCERT extract, उसमें सीधा NCERT के questions हैं, you can solve that. I wish मैंने solve किया होता because मेरे सारे marks biology में कटे थे. All marks I lost. तभी मेरे आए 330 biology में, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की एक्स्ट्रा पढ़ने में जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो आप biology NCERT की पढ़ो. हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. टू मेंटेन कंसिस्टेंसी आपको अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा कि कि हमने डिसाइड किया है हमें एग्ज़ाम अच्छी तरह क्रैक करना है, तो वो कंसिस्टेंसी आपको अंदर से ही आएगी. एंड व्हेन यू रियलाइज़ कि आपके पास इतना सारा काम पड़ा है करने को, यू हैव सो मच बैकलॉग, you can think that your teachers have put in so much effort, your family has been supporting you, so you feel obliged कि if I just let go, अगर मैं छोड़ दूँ पढ़ना तो सारा रिजल्ट खराब हो जाएगा. So that would just let everyone down. That was my motivation. So you have to find your own motivation. If there is no clock, I think the invigilators can tell you the time. इतनी problem नहीं होती है. Any more questions? Overall advice for class 11, that is good. आप बिल्कुल अपने foundation years में हो. I would say do not repeat the mistakes I made. You have to solve mock tests properly. You have to keep practicing MCQs. Sit for every exam. मतलब आप KVPY अगर हो रहा है, आप KVPY attempt करने की कोशिश करो. Practice ही मिलेगी आपको. Mock test से आपको पता चलता है where you stand, how people are performing relative to you, because at the end of the day, your rank matters. How much you score, it really does not make a difference if your rank is not good. Next year, अगर 700 पर भी rank 100 आई, so you can feel happy that I scored 700, but the rank is still not matching up, right? What you would expect. So your rank matters, and for that you need to attempt mock tests so you know कि मेरा peer group कैसा perform कर रहा है and where I need to improve. How did you tackle distractions? I'm glad you asked me. So I had no Instagram, no Snapchat. I only had WhatsApp. I had Telegram because काफ़ी PDFs मिलते हैं Telegram पर solve करने के लिए. So no Instagram, no Snapchat, no spending unnecessary time watching videos on YouTube जो time waste करे, motivation वाली बात करे, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा. How much should we give to problem solving a day? Good question. I think every single day you should try solving at least 25 to 30 MCQs, 50 if possible, if you're very motivated, for physics because लोगों को बहुत problem होती है, and if you don't solve mock tests वो आपका कभी strong नहीं होगा. तो problem solving के लिए don't devote hours, decide मुझे कितने question solve करने हैं. So I think 30 to 50 is a good number for daily practice. How about dropping a year? See, that is very subjective. I think everybody should attempt. जिसको इस साल देना है वो अपना NEET attempt करे, देखे क्या result है and accordingly decide करे. Did you face any problem in starting of 11th? I did. बहुत problems हुई थी because मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी coaching की, and इतना heavy होता है कि मैंने कभी coaching class देखी ना हो and एकदम से मैं 4 hours coaching में बैठी थी. तो it was difficult, but you get used to it. ठीक है? I have been there. Ultimately, you'll realize कि ये करना है and you get used to it. Also, key thing, 11th, please अपनी waste मत करो. You have to build on your concepts in class 11. I saw a question कि how did you manage your backlog of class 11 and 12? तो class 12 में I realized कि 11th का बहुत सारा backlog था, physics में, chemistry में, biology में. Like मुझे कुछ आता ही नहीं था essentially कि मैं अच्छी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. तो आई यूज़ टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम एवरी डे. जो फिज़िक्स में हो गया, जो मेरा नॉर्मल क्लासेस में हो गया क्लास 12 का, वो तो है ही, बट आई हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम एवरी वीक.
every day, every week, weekends पे extra I used to spend like 2-3 hours कि मुझे 11th के questions भी solve करने हैं. क्या आपको भी शुरुआत में फिजिक्स हार्ड लगता था? सो सी, फिजिक्स थोड़ा सा इनिशियली इट कैन बी चैलेंजिंग बिकॉज 10th में ऑनेस्टली देर इज नो फिजिक्स, इट्स मोर लाइक जनरल साइंस. सो व्हेन यू सी द वेक्टर्स एंड व्हेन यू सी वेलोसिटीज एंड यू सी कंपोनेंट्स, इट कैन गेट अ लिटिल ओवरवेलमिंग. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वेक्टर्स हैं, जैसे वेलोसिटी वाली चीज़ें हैं, दे आर फंडामेंटल. आपको मैग्नेटिज्म में भी करना पड़ेगा. वेक्टर्स आपके हर जगह आएंगे, रोटेशन में आएंगे, क्लास 12 में भी बहुत आएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद देम. प्रॉब्लम होगी बट यू हैव चोजन दिस पाथ, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड you have to make sure that you are good at these topics. I study for 9 hours till 4 days and then I don't feel like studying. I see. So you have to find a balance. ठीक है, कि आपको अपने आप को exhaust नहीं करना है to the point कि you give up and you don't want to do anything. So in fact this happened to me in class in the lockdown कि my marks started dropping बीच में थोड़ा बहुत and I started getting very demotivated. I used to study for hours कि मुझे अपने marks improve करने हैं, but वो नहीं होते थे and it's very upsetting. So what I did was I took a break for a week and I only watched TV, I listened to music, I played games with my friends and I started feeling better and I reduced my mock test frequency thoda sa. So instead of a mock test every day, I started solving a mock test once in 2 days. लास्ट मंथ में ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, एवरी डे आपको करना है, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा रिड्यूस किया था सो आई कैन स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड. बिकॉज डिफिकल्ट होता है व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ ऑल द स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, इट कैन गेट टू यू. हाउ टू अप्रोच फॉर AC करंट? AC करंट में कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं. एक इम्पीडेंस वाला होता है, फिर इक्वेशन रिलेटेड होता है. सो यू आइडेंटिफाई क्या क्या इम्पॉर्टेंट है एंड आप ट्राई करो, यू प्रैक्टिस, उस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छी तरह जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओ. Should I give focus to 1 subject a day or 3 subjects a day? I used to give focus to 2 subjects a day. Physics, chemistry, physics, biology, biology, chemistry. Biology, try to do every day if possible because syllabus is very vast and practice हर रोज़ होनी चाहिए. So you can try. I think two subjects a day is a good baseline. If you're feeling very motivated, you can move on to 3 subjects a day. What is the use of notes in biology? Because each and every line is important. I agree with you. But when you have identified the key points, जैसे अगर match the following आ गया कि इस element का ये effect है, in mineral nutrition. So when you have a note, you have a picture कि मैंने ऐसे list बनाई थी. So that helps. What was my reaction after my result? I would say that I was not expecting it because last year के trend के according 683 marks पे the rank was very different. तो I did not expect कि 500 के आसपास होगी. So I was feeling a little disappointed कि इतनी ज़्यादा inflation क्यों हो गई. But I was also happy that I would get admission to MAMC. Sometimes I feel like I have done enough of questions of chapter going on in class. What to do next? So if you feel like you have enough practice of what is going on in the class, instead of spending more time on that topic, you can try revising your backlog. जैसे अगर class 12 में मेरा magnetism चल रहा है and I realize कि नहीं मैं तो बहुत practice कर चुकी हूँ, then I would leave it and I would go back to class 11. कि मेरा इतना backlog है तो मैं ये पढ़ लेती हूँ. Any tip for board term 1 as it is also an MCQ format? Boards के लिए NCERT is more than enough. Derivations you keep in mind, examples you keep in mind, and I think that should be enough. MCQs आपके हो जाएंगे, if you're familiar with NEET MCQs तो आपके हो जाएंगे. How many hours should I be able to complete 1 chapter in biology? I would say if you're starting,
from the very beginning, it's okay to take time. But if you're just revising, you should be able to revise in like maximum an hour and a half or two, because you have to, quickly revise everything. Can we watch Netflix at least 2 hours a week? It's up to you. आपको जैसे अनवाइंड करना है, जैसे रिलैक्स करना है, आप देखो. बट एक बार आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल बिंज वॉचिंग नहीं करना. एक एपिसोड देखा, छोड़ दो. ऐसे नहीं कि मैंने ब्रुकलिन 99 स्टार्ट किया और मैं बस देखे जा रही हूँ उसके बाद. तो ऐसे नहीं करना. Any other questions? How many breaks a day? I think you should take a break after around 3 hours. I think 3 hours ke baad concentrating becomes very difficult. So I used to study lockdown mein 9 to 12:30, then break, 2 to 5 mock test, then around 6:30 तक analysis, break, और रात को 2 घंटे या 3 घंटे I used to study. Sleeping schedule, sleep whenever you want to, but don't oversleep and don't undersleep. I think 6 to 7 hours around this time, agar exam aa raha hai, is good. Otherwise 7 to 8 is fine if you can manage. Mere liye, I could leave everything. Like I can leave watching TV, I can leave playing games, but मुझे सोना बहुत important था. तो I used to give special attention to my sleep cycle. Sleep पे compromise नहीं करना. Anything else? I can't study at night. It's okay. You study in the morning. How to get over the stress? I think you should not compare yourself. आपकी अपनी capabilities हैं. अगर आप compare करोगे आपको stress होगा. But you can try, you can see कि वो लोग क्या कर रहे हैं जिससे उनके marks अच्छे आ रहे हैं. You can try to incorporate something like that. तो अगर if they're using like they have very good notes, you can see, if you can ask them if they would like to share ताकि आप भी पढ़ सको. It's you can try. तो ऐसे अपसेट नहीं होना कि उसके क्यों आ रहे हैं. यू कैन ट्राई लर्निंग कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके अच्छे मार्क्स आ गए. इफ मेडिटेशन वर्क्स फॉर यू, मेडिटेशन इज ग्रेट. जो भी मुझसे मेडिटेशन के बारे में पूछ रहा है. I never use the empty column. ठीक है. But if there's something extra you want to write, you can write. What not to do in class 11? Not attempting mock tests and not clearing your doubts. Do not do that. Ma'am C is great. अभी ऑनलाइन है, so we have not really experienced कि क्या चलता है. लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपको आई टेल यू समथिंग. अगर आपकी ऑनलाइन क्लास चलिए, प्लीज़ उसे ऐसे मत करना कि म्यूट करके हम सोने चले गए. बिकॉज नाउ दैट आई एम इन कॉलेज, आई एम प्रॉबली गिल्टी ऑफ इट. तो आप ऐसे मत करना, बिकॉज आपका बहुत क्रूशल पॉइंट है. सो यू अटेंड योर लेक्चर्स प्रॉपरली, बिल्कुल फोकस के साथ करना, साइमल्टेनियसली MCQ सॉल्व करना. एंड आई थिंक यू विल बी फाइन. बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से रिलैक्स होके करना है. Were you an average student? So in school, I've always been actually a studious kid. I think topper, I don't know, but I've always been a studious person. I hope you learned something, and I hope I was able to clear your doubts. If there's anything else, quick question, like you can tell me. Otherwise, I think I'll end the session. What after MBBS? पहले MBBS हो जाए, उसके बाद I'll see, because बहुत vast है syllabus. Tips and tricks to solve numericals. Formula should be on your tips.
क्विक मेंटल मैथ्स, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो, वो आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस से आएगा. कभी कभी फिजिक्स में कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं शॉर्टकट टाइप, यू कैन लुक इनटू दोस, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हो जाएंगे, सो यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड. सो यू शुड ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस यूजिंग योर बेसिक फॉर्मूले. कुछ कुछ स्पेशल होते हैं, अगर बहुत कॉमनली आस्ट है तो याद कर लो, बट क्विक मैथ्स एंड फॉर्मूले एट योर टिप्स, you should be okay with physics. Thank you. I'm glad I could help you. Mantra to crack NEET is consistency. Keep solving, keep practicing, and you should be okay. And don't take stress. ठीक है, बिल्कुल panic नहीं करना. I was guilty. I panicked a lot before the exam, and I can tell you कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे panic करके. तो आप बिल्कुल panic मत करना. What are the critical things you did? I solved a lot of questions. I can assure you I solved a lot of questions. मुझे कुछ भी मिलता था, I used to just solve it. So whatever you find, whatever tests you're finding online, कुछ भी आपको मिले, आप please सारा solve करो. Because practice seriously makes perfect, and the more you practice, the better you'll be at it. All right. Thank you so much for attending, and have a nice day.